So today topic is constructor. Sorry, I have to define first method. So how to define a method? For defining a method is what? It is a block which contains set of instruction which is used to do specific task. ଯେମିତି ତମେ join କରୁଛ Zoom ରେ ଯେତେବେଳେ join କରୁଛ, so at that timing you are using the different option like mute videos. Okay, so these are the options that you are using that is used for specific purpose. ଗୋଟେ specific purpose ପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ use କରାଯାଉଛି. Okay, so it is not used for multi-purpose, so it is used for specific purpose. Then how you have to define a method? Method ଆମେ କେମିତି define କରିବା? तो first ଆମେ define କରିବା access specifier return type function name in bracket. It is the body of the function. Body of function. Okay, so it is called the body of the function. So next, second point, this contain the parameter. This is contain the parameter. तो next हो गया आपका parameter function name. ये second way. थर्ड वे में कैसे डिफाइन होगा? The function, if you define, there is no need to define access specifier. Return type, then without parameter यहाँ पर डिफाइन करें. फोर्थ में कैसे यूज होगा? With parameter. So now parameter is what? अच्छा, फंक्शन और मेथड इसका काम क्या है? एक्चुअली basically it is used to do the specific tags. Okay, if you see that in Zoom,
you have mute option, you have video option, you have a option for sending message. So what are the option you are getting in Zoom that is used for unique purpose? A unique purpose के लिए यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है ना, आप every option is used for unique purpose and it is not duplicated and its functionality is never changed. So it contains the set of instruction which is used to do the specific task. जैसे कि आपका मोबाइल जब कॉल आता है, एक ग्रीन बटन आता है, एक रेड बटन आता है। तो ग्रीन बटन में हम जब प्रेस करते हैं तो आपका कॉल रिसीव होता है, और रेड बटन में क्या होता है, आपका कॉल डिस्कनेक्ट होता है। सो दीज आर द टू ऑप्शन विच इज यूज फॉर यूनिक पर्पज. So that is called as your what function when it is used for unique purpose. And यहाँ पर क्या हो रहा है, नई जो फंक्शन है वो चार वे में हम डिफाइन कर सकते हैं. एक है हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे, दूसरा है आपका रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप का मतलब क्या है ना, फंक्शन एक क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो प्रोसेसिंग करके आपको कुछ रिजल्ट आपको शो करेगा, तो इसलिए हम रिटर्न टाइप यूज कर रहे हैं. और उसके बाद फंक्शन नेम यूज कर रहे हैं. कुछ फंक्शन ऐसा होता है जो बाय डिफॉल्ट काम करता है, मतलब जब कॉल आएगा तो आप ग्रीन बटन आप प्रेस करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा. लेकिन जब आप चैटिंग करते हो वहां पर कुछ वैल्यू देना पड़ता है, स्माइली हो गया, कुछ टेक्स्ट हो गया. ये जो वैल्यू आप इंपुट देते हो ये हो गया आपका पैरामीटर. पैरामीटर मतलब क्या है ना, ये यूजर से वैल्यू लेगा और उसको प्रोसेसिंग करेगा और आपको आउटपुट रिटर्न करेगा, तो इसको बोला जाता है पैरामीटर. इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन फंक्शन एंड कॉलिंग कोड. फंक्शन और जो कोड को कॉलिंग कर रहा है और जो फंक्शन के साथ इंटरैक्शन कर रहा है, तो उसका जो उन दोनों में एक कोऑर्डिनेशन रखने के लिए ये पैरामीटर यूज होता है. गॉट इट रश्मिता? Yes, sir. So parameter, it works as bridge between function and calling code. So why this function is used, this parameter is used, it is used to pass and receive data to and from function at runtime. And basically ये जो फंक्शन है ये किस तरह से यूज होगा, पहला है एग्जाम्पल. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो पहला वे में आपका डिफाइन किया जाएगा पब्लिक void show function. Public is called as the access specifier, void is the return type. So void is a return type which doesn't return any वैल्यू. अगर फंक्शन से कुछ वैल्यू आपको रिटर्न नहीं कर रहे हो तो ये आपको यूज होता है रिटर्न टाइप. नेक्स्ट में क्या होता है, अगर आप कुछ रिटर्न करना चाहते हो, अगर आप इंटीजर रिटर्न करना चाहते हो तो यहाँ पर आईएनटी लिखा जाए, void के जगह पर आईएनटी. तो void in place of void what you have to write, in place of void, void के जगह पर आप क्या क्या लिख सकते हो,
INT लिख सकते हो। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको इंटीजर वैल्यू देगा तो INT, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये डबल वैल्यू देगा तो रिटर्न टाइप वॉइड के जगह पर आप डबल डबल लिखोगे। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा तो स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। तो ये सारा चीज रिटर्न टाइप है। जो वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका फंक्शन कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहाँ पर आप रिटर्न टाइप यूज कर सकते हो। ये हो गया आपका रिटर्न टाइप। नेक्स्ट में क्या है ना, पैरामीटर है। तो पैरामीटर में कैसे डिफाइन किया जाएगा, पब्लिक डिस्प्ले, अगर आप डिफाइन करोगे स्ट्रिंग, ये पैरामीटर स्ट्रिंग है। अगर आप इंटीजर देना चाहते हो तो इंटीजर भी दे सकते हो। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले INT, आपका इंटीजर होगा तो ये स्ट्रिंग होगा, एक एक होगा इंटीजर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे नाउ विदाउट एक्सेस स्पेसिफायर वॉइड, फंक्शन का नाम हो गया डिस्प्ले, देन ये हो गया आपका विदाउट पैरामीटर, विदाउट एक्सेस स्पेसिफायर विदाउट पैरामीटर। ये वाला हो गया विदाउट एक्सेस स्पेसिफायर देन पैरामीटर। INT ये भी डाल सकते हो और स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर कुछ भी डाटा टाइप आप दे सकते हो। मैं सिर्फ दोनों का एग्जांपल लिया हूँ। इसके अंदर सारा स्टेटमेंट रहेगा। स्टेटमेंट यहाँ पर पे आपका स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट आपको डिस्प्ले करना है। ये हो गया फंक्शन। अभी मुझे क्या करना है, ये तो मैं फंक्शन डिफाइन कर लिया। अभी फंक्शन डिफाइन करने के बाद आपको इसको कॉल करना है। तो क्लास माई फंक्शन में सिर्फ ये प्रोटोटाइप डिफाइन कर रहा हूँ, ये एक्चुअल प्रोग्राम नहीं है। सपोज एक फंक्शन, एक क्लास मैंने डिफाइन किया, क्लास का नाम है माई फंक्शन और फंक्शन का नाम सपोज हो गया पब्लिक डिस्प्ले। यहाँ पर मैं डिफाइन किया INT ए बोलकर एक फंक्शन है, INT ए एक फंक्शन है और एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ void शो फंक्शन। यहाँ पर यूज होगा स्ट्रिंग NA, एक फंक्शन है, मतलब दो फंक्शन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। अच्छा, फंक्शन को कैसे कॉल किया जाएगा, फंक्शन को कॉल करने के लिए पहले आपको मेन मेथड डिफाइन, मेन मेथड में फंक्शन कॉल होता है पब्लिक स्टैटिक void मेन। ये आपका मेन मेथड है, एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम, एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपका फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल, I got another message. There is a display and show is the function name. It is a name of a function. You can give any name. It is not having any difference. It is a function name. आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ये मैं दिया हूँ डिस्प्ले और शो। इट इज ए वे ऑफ फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, ये सब नेम है, ये यूजर डिफाइन नेम है। कुछ भी नेम डाल सकते हो। ओके रश्मिता, Yes, yes. नाउ फॉर कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन को कैसे कॉल होगा ना, फंक्शन जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो आपका कंपाइलर पहले जाता है मेन मेथड को जाता है। तो मेन मेथड में पहले वो ढूंढेगा क्या, किसको एग्जीक्यूट करना है। तो क्लास का जो मेंबर्स होता है, क्लास का मेंबर का मतलब है क्लास के अंदर जो वेरिएबल आप डिफाइन करते हो, जो फंक्शन आप डिफाइन करते हो, वो सब मेंबर ऑफ फंक्शन है।
Okay, the variable and function that is defined inside a class is called as the member of the class. ये member को आप कैसे कॉल करोगे? पहले आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. my function mf is equals to, तो आप पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. मतलब आपका जो फ्रेंड को अगर घर में कुछ ओकेजन हो रहा है, उनको इनवाइट करने के लिए पहले आप इनविटेशन कार्ड बनाते हैं. माई फंक्शन एम इज द ऑब्जेक्ट. आप कुछ भी नाम डाल सकते हो इधर. क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू माई फंक्शन. क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम देन न्यू माई फंक्शन. एक क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर डिफाइन किया. डिफाइन करने के बाद उसके बाद मैं फंक्शन को कॉल करूंगा. एम डॉट डिस्प्ले फंक्शन. मैंने फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया. एम डॉट डिस्प्ले फंक्शन. एम हो गया ऑब्जेक्ट, देन फंक्शन को कॉल किया डिस्प्ले फंक्शन. तो यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल किए. लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पर और एक फंक्शन में अगर डालूंगा void fun, एक फंक्शन मैंने डाला void फॉन फंक्शन. यहाँ पर विदाउट पैरामीटर. यहाँ पर पैरामीटर है, यहाँ पर पैरामीटर है, यहाँ पर पैरामीटर नहीं. तो ये ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया. ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले क्लास का नाम आपको लिखना पड़ेगा. एम इज एनी ऑब्जेक्ट नेम. आप कुछ भी नाम डाल सकते हो. देन न्यू माई फंक्शन. एम डॉट ये फंक्शन fun. यहाँ पर कुछ पैरामीटर नहीं है तो मैं डायरेक्ट fun डाल दिया. उसके बाद एम डॉट डिस्प्ले फंक्शन. यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन डाल दिया. उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन जब मैं कॉल करूंगा, यहाँ पर ये पैरामीटर मांग रहा है. मतलब यहाँ पर कुछ वैल्यू है int तो आपको यहाँ पर इंटीजर वैल्यू देना पड़ेगा. तो जब मैं शो फंक्शन को कॉल करूंगा एम डॉट शो फंक्शन, जब हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर भी पैरामीटर है. लेकिन यहाँ पर कौन सा पैरामीटर है? ना स्ट्रिंग पैरामीटर है. तो स्ट्रिंग वैल्यू पास करने के लिए डबल कोटेशन हमने पास किया. तो यहाँ पर सपोज मैंने डाल दिया दिनेश. तो इस तरह से आपका वैल्यू मतलब फंक्शन कॉल होता है. अगर पैरामीटर होता है यहाँ पर हम वैल्यू पास करेंगे. एनी डाउट टिल नाउ कैसे फंक्शन को कॉल किया जाएगा और ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा? अमन, भोपानी, सीताकांत, मिलन, रश्मिता. यार अगर ऑब्जेक्ट को रिकॉल करना होगा उसके लिए क्या होगा सर? ऑब्जेक्ट को रिकॉल करना होगा. ऑब्जेक्ट रिकॉल नहीं होता है. आप और एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो. यहाँ पर एम ऑब्जेक्ट हुआ. एक क्लास का आप बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना सकते हो. जितना बार आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना बार जो मेंबर्स है वो मेंबर के लिए मेमोरी क्रिएट होगा. तो यहाँ पर एम ऑब्जेक्ट बनाया तो फिर m1 कॉल किया. ओके ओके सर. भवानी, रश्मिता, बुझेला बुझेला यस सर. सर टिके टिके बुझी होची कोठी बुझेलानी को सर फंक्शन टाको कॉल करिवाटा. फंक्शन जेमते कि सपोज if you invite your friend to your birthday party, then you have to invite them through the invitation card. घर में क्या होता है जब मैरिज का फंक्शन होता है किसी का, क्या बर्थडे पार्टी होता है, तो ये आपको एक इनविटेशन कार्ड आपको भेजते हैं. तो इनविटेशन कार्ड के मदद से आप क्या जाओगे ना, आपको टिकट मिल जाएगा खाने के लिए उधर जाकर. ओके तो ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है ना, ये मेंबर्स को कॉल करेगा. ये जो ऑब्जेक्ट है, क्लास का नेम है माई फंक्शन. ऑब्जेक्ट हो गया एम इज इक्वल्स टू न्यू माई फंक्शन. एम हो गया क्या ना, एम हो गया ऑब्जेक्ट. एम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास.
ये जो ऑब्जेक्ट है आप किसी भी नेम डाल सकते हो। ओके आप कोई भी नाम डाल सकते हो, एम इज नॉट मैंडेटरी। आप कोई भी नाम यहाँ पर डाल सकते हो। माई फंक्शन एम इज इक्वल टू न्यू माई फंक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले क्लास का नाम, देन ऑब्जेक्ट का नाम, देन न्यू माई फंक्शन। न्यू कीवर्ड यूज किया जाएगा, क्लास का नाम यूज किया जाएगा, और वही ऑब्जेक्ट के मदद से मैं मेंबर्स को कॉल करूंगा। मेंबर्स यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर मेंबर एक फंक्शन है, ये नॉर्मल फंक्शन है, तो डायरेक्टली मैं एम डॉट फॉन्ट डाल दिया। ओके कुछ दोस्त होते हैं मतलब आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, और यहाँ पर जब आप कॉल करोगे तो उनको पैरामीटर देना पड़ेगा। ओके ये जो 10 है ये ऑटोमेटिकली कहाँ पर चला जाएगा, ये पर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है। जब आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करोगे, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है, तो आप यहाँ पर 10 पास करोगे। तो यहाँ पर क्या है, एम डॉट शो फंक्शन, ये जो शो फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं, यहाँ पर जैसे कि स्ट्रिंग वैल्यू है, तो आपको यहाँ पर डबल कोटेशन में पास करना पड़ेगा। इज इट क्लियर भवानी? Yes. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जसविन बुझेला? Yes, sir. Now I show I will send you this program. Actual program now I show you. ये था एक प्रोटोटाइप था, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्लास मैंने डिफाइन किया, क्लास डेमो मेथड, क्लास डेमो मेथड INTA। जैसे कि पहले मैंने बताया था, क्लास के अंदर जो वेरिएबल और फंक्शन डिफाइन होता है, इसको बोला जाएगा मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन। मेंबर वेरिएबल और इसको मेंबर फंक्शन बोला जाता है। यानी वेरिएबल एंड फंक्शन दैट इज डिफाइंड इनसाइड ए क्लास इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ क्लास। इसको बोला जाएगा मेंबर ऑफ क्लास। तो INTA यहाँ पर रह गया void show फंक्शन, यहाँ पर हो गया आपका void display फंक्शन। एक शो फंक्शन हो गया और एक है आपका डिस्प्ले फंक्शन हो गया। void शो फंक्शन एंड void डिस्प्ले फंक्शन। यहाँ पर एक नॉर्मल फंक्शन है, यहाँ पर जो फंक्शन है ये आपका हो गया पैरामीटराइज फंक्शन। पैरामीटराइज फंक्शन मतलब फंक्शन विथ पैरामीटर। ये जो ग्रीन कलर का जो शो कर रहा है, इसको बोला जाता है कमेंट लाइन, मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ये क्या डिटेक्ट करता है, ये लाइन में क्यों लिखा हूं और ये लाइन क्या है, इसको शो करने के लिए ये वाला यूज किया जाता है। इट इज नॉट मैंडेटरी। प्रोग्राम में ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए और बताने के लिए एक्चुअली ये क्या है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कमेंट लाइन यूज किया हूँ। तो ये ग्रीन कलर का आपको यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर void शो फंक्शन है, यहाँ पर आपका void डिस्प्ले फंक्शन है। अभी मैं क्या करूंगा ना, ये जो मेंबर्स को कॉल करने के लिए मेन मेथड में पहले मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है डेमो मेथड। ऑब्जेक्ट क्या है
ना ऑब्जेक्ट का नाम हो गया आई, यहाँ पर आप कुछ भी नेम डाल सकते हो। तो न्यू डेमो मेथड, ओके, तो डेमो मेथड आई इज इक्वल टू न्यू डेमो मेथड आई डॉट ए, ओके, आई इज द ऑब्जेक्ट, डॉट मीन्स कॉलिंग, डॉट मीन्स कॉलिंग, okay, to whom I am calling member variable, डॉट यूज करके मैं मेंबर वेरिएबल को कॉल किया, आई डॉट ए में मैं क्या स्टोर किया, ना 20 स्टोर किया। फिर मैं किसको कॉल करूंगा, मैं शो फंक्शन को कॉल करूंगा, आई डॉट शो फंक्शन। जब हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे, शो फंक्शन ब्लैंक है, तो ये जो फंक्शन के अंदर जो चीज है ये आपको दिखाएगा दिस इज मेंबर फंक्शन, तो इसके अंदर जो चीज है दिस इज मेंबर फंक्शन। फिर जब हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, आई डॉट डिस्प्ले, जब डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे इसके अंदर क्या है ना INT बी है, तो ये 50 में बी में स्टोर किया, बी से आकर मैं एक्स में स्टोर किया, तो ये आपको शो करेगा द पैरामीटराइज फंक्शन वैल्यू इज 50, द पैरामीटराइज फंक्शन द वैल्यू इज 50, तो यहाँ पर आपको 50 दिखाएगा। ओके, तो आई डॉट ए 20 आई डॉट शो देन आई डॉट डिस्प्ले फंक्शन, तो 50 जाकर यहाँ पर शो होगा, स्टोर होने से बी से आ जाएगा एक्स में, तो एक्स में आपको वैल्यू दिखाएगा दिस इज ए पैरामीटराइज फंक्शन वैल्यू इज 50। इज इट क्लियर? तो इसको सर ऊपर हाँ हुआ, सर सर ऊपर जो अच्छी इंट ए सर से फंक्शन लास्ट ब्रैकेट से स्टार्टिंग और एंडिंग दिया बोले it is not a function, it is a variable, এটা হচ্ছে variable, member variable, it is not a function। okay, function is this one, function এ কোন থিব return type থিব and parenthesis থিব, this is a function, it is a variable। यस okay, কাহার কো লাইনে ডাউট আছে, any doubt in this line? Rashmita, Sir, 12th number. 12 number, it is only showing the value. The first I call the display function, when I call the display function this 50 is initialized in the b, ये जो 50 वैल्यू है वो b में चला जाएगा, b में जो वैल्यू 50 है वो x में स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको शो करेगा दिस इज ए पैरामीटराइज्ड फंक्शन वैल्यू इज 50। ओके, Yes, sir. भवानी, यस सर। एनी डाउट? सर 15 नंबरটা 15 नंबर इज ए मेन मेथड। यस सर। सर से जो ARG सर स्ट्रिंग ARG से लिखचंदी सर ब्रैकेट कोन सर फांका रहइबो? हाँ, it is blank and this name is not ब्लैंक fixed। ब्रैकेट। हाँ, में square bracket blank, it is a square bracket main method, and ARGS is not a fix, you can give any name, ARGS is a variable name, you can give any name। यस सर। okay. अमन, आपको समझ में आया? जी सर, वो सर 17 नंबर में आई है वो क्लास का ऑब्जेक्ट है। हाँ, आई इज ए ऑब्जेक्ट नेम, ये जो ऑब्जेक्ट है आप कोई भी नेम डाल सकते हो, इट इज नॉट फिक्स, तो आई इज अ ऑब्जेक्ट नेम, यू कैन गिव एनी नेम। ओके, और सर वो कॉल करता है ना, जैसे वेरिएबल ए है तो सर उसका वैल्यू वहां पे ऑटोमेटिक पुट हो जाएगा। हाँ, ये हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया ऑब्जेक्ट के मदद से आप कॉल करोगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसको कॉल करेगा, मेंबर्स को कॉल करेगा। यहाँ पर मेंबर्स जी। कौन है ना, ए इज ए मेंबर वेरिएबल। जी सर। ओके, तो ए को कॉल किया आई डॉट ए इज इक्वल टू 20 मेंबर्स हो गए। और फंक्शन को भी कॉल किया सर, शो को, तो हाँ, शो को भी कॉल किया इधर। ओके, जस्मिन, ओके। Yes, sir. विदाउट हाँ sir. कोडी को मैं किसी नहीं। सीताकांत, यस सर
बुझिए लग Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now I run the application. So how you run the application in the command prompt? So first you open the command prompt, window R, then write CMD, then write here D colon. My program is present in D drive, D colon, enter. Java C is the compiler name. File name is demo method dot Java. This is a compiling. Then for execution Java, then demo method. So it is showing you this is member function. This is a parameterized function, and parameterized function value is what? Value is 50. This 50 it is going to this part. It is showing you this is a parameterized function. Value is 50, and member variable I dot a. It is showing you member variable is 20. Okay. Yes, sir. Okay, so it is a calling of function. Okay. So in next class, I will show you the constructor. What is the use of constructor? Then how you have to take the keyboard input. ये दोनों हम पढ़ाएंगे. Okay. I think you have कल holiday class too. over गया। हाँ कल तो हॉलीडे है सर। हाँ, तो थोड़ा जल्दी हम करेंगे, तो मैं थोड़ा रात में देखकर कौन सा टाइमिंग में होगा मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूँ. ओके. ओके।